اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایاں تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ اس وقت امریکہ سے ایک بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ 2 دن پہلے یعنی 31 دسمبر 2024 کو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں نئے سال کا جشن بڑی بےخودگی کے ساتھ، ننگے پن کے ساتھ، شراب و شباب کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہے۔ امریکہ سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ میں نئے سال کا جشن ماتم میں بدل گیا۔ جی ہاں، موت کے بادل وہاں پر منڈلا گئے۔ خبر ہے کہ ایک ہجوم تھا جو نئے سال کا جشن منا رہا تھا، ایک بے قابو ٹرک ان پر آ کر چڑھ گیا اور 10 افراد کی موت ہو گئی، 30 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں نئے سال کے جشن کے موقع پر یہ بڑا حادثہ پیش آیا۔ ایک شخص نے مبینہ طور پر ہجوم کے درمیان ٹرک گھسا دیا۔ اس ٹرک نے 10 لوگوں کو کچل دیا جبکہ 30 لوگ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق پولیس نے 1 جنوری کو اس واقعے کے متعلق جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ شہر کے معروف بوربین اسٹریٹ علاقے میں ایک کار، حالانکہ میڈیا رپورٹس میں ٹرک کی بات کہی جا رہی ہے، لوگوں کے گروپ میں گھس گئی اور ان کو کچل دیا۔ اس بڑے حادثے پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ حادثے میں نامعلوم تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ حادثے کے وقت موجود لوگوں کے مطابق ایک ٹرک بھیڑ میں گھس گیا اور ڈرائیور گاڑی سے باہر نکل کر فائرنگ کرنے لگا، جس کے بعد پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ لیکن خیر، امریکہ میں جشن کا ماحول ماتم میں بدل گیا، 10 افراد کی موت ہو گئی۔ اسی طریقے سے جرمنی میں بھی ہوا۔ جرمنی میں یہی سال نو کا جشن، نئے سال کا جشن منایا جا رہا تھا، آتش بازی ہو رہی تھی کہ 5 افراد کی موت ہوئی۔ خیر، سینکڑوں لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اور پڑوسی ملک کراچی میں بھی یہی ہوا۔ کراچی میں سال نو کا جشن منایا جا رہا تھا جس میں ہوائی فائرنگ ہوئی، 24 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، سوئٹزرلینڈ جسے دنیا کی جنت بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب وہاں پر سوئٹزرلینڈ میں عوامی مقامات یعنی جو پبلک پیلیسز ہے، جیسے بازار ہے، اسٹینڈ ہے، اسٹیشن ہیں، مالز ہے، باغ ہے، یہ تمام جو
पब्लिक पैलेसेस कहे जाते हैं, अवामी मकामात कहे जाते हैं। स्विट्जरलैंड में वहां पर अब अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी 2021 में मंजूर की गई थी। इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को 1000 स्विस फ्रैंक या $1100 से ज्यादा का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। यानी बाहर अगर किसी औरत ने चेहरा ढांपा तो फिर उसे $1100 का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। स्विस हुकूमत ने 6 नवंबर को 1 जनवरी 2025 को मुअस्सिर होने के लिए अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने पर पाबंदी लगाने वाले कानून की तारीख मुकर्रर की है। ये फैसला 7 मार्च 2021 को स्विस आवाम की तरफ से किए गए रेफरेंडम के बाद किया गया था। ये पाबंदी हवाई जहाज़ों, सिफारती या कौंसलर कॉम्प्लेक्स, मजहबी मकामात या ऐसी सूरतों पर लागू नहीं होती जहां चेहरा ढांपने से सेहत या हिफाजत को खतरा लायक हो या मकामी रसूमात की पैरवी में मुदाखलत हो, मगर अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने पर पाबंदी नाफिज कर दी गई है। नाज़रीन, मुल्क के शाम, आप जानते हैं कि आज से 2 हफ्ता कबल मुल्क के शाम में तख्ता पलट हो गया। बशार अल असद, जिसे जालिम, हिटलर और कातिल न जाने कितने नामों से जाना जाता है, बशार अल असद मुल्क छोड़कर अपनी फैमिली लेकर जान बचाकर भाग गया, फरार हो गया। जैसे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना अपनी जान बचाते हुए हिंदुस्तान पहुंच गई और यहाँ पर पनाह लिए हुए, ऐसे बशार अल असद को भी मुल्क छोड़कर, शाम छोड़कर भागना पड़ा। अब वहीं से खबर आ रही है कि जो बागी ग्रुप है जिसने बगावत किया और बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता पलट दिया, वहां से खबर आ रही है कि अहमद अशरा, जो अभी फिलहाल हुक्मरान है, यूं समझिए, तो खबर आ रही है कि उनसे, अहमद अशरा से मसीही अक़लियती रहनुमाओं और कुर्द कमांडरों के वफूद ने मुलाकातें की। शाम के लिए इमदादी फ़ज़ाई पुल का मकसद हर उस चीज़ को पेश करना है। सऊदी अरब ने कहा कि शाम के लिए हम इमदादी फ़ज़ाई पुल देंगे और इसका मकसद हर उस चीज़ को पेश करना है जिससे शामियों की मुश्किलात में कमी आ सके। शाम की जो अभी अबूरी हुकूमत है, उसके कायद अहमद अशरा से पीर और मंगल के रोज़ मसीही मजहब और कुर्दों के अहम रहनुमाओं ने अहम मुलाकातें की है। ये मुलाकातें मुख्तलिफ अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जारी मुतालबात के तनाजुर में की गई है। मसीही वफ़द जिसने अहमद अशरा से मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क में मुलाकात की, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर इजहार भी सामने आया है। टेलीग्राम के मुताबिक मुलाकातें करने वालों में मसीही कैथोलिक फ़िरक़े के नुमाइंदों के अलावा ऑर्थोडॉक्स और मसीही उलमा भी इस मुलाकात में वफ़द की शक्ल में शामिल थे। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि पाकिस्तान में अब गुर्बत 7% बढ़ गई। मजीद 1,30,00,000 पाकिस्तानी फिर गरीब हो गए। कोविड-19 कोरोना की जो वबा आई थी, उस वबाई अमराज के अहम असरात गुजरने के बाद तबाहकुन सैलाब आया। उस सैलाब ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया और ज़रई पैदावार में कमी के साथ साथ रिकॉर्ड इफरात ज़र की सतह और माशी बहरान के साथ गुर्बत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। और अभी रिपोर्ट पाकिस्तान की ये बता रही है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 7% मजीद बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 3.25% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज्यादा है। नाज़रीन, गज़ा से एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि इन 16 महीनों में गज़ा में इजराइल ने जो भी आतंकवाद का नंगा नाच खेला, 17,000 बच्चों को शहीद किया, 20,000 के करीब औरतों को और 50,000 के करीब आम फ़लस्तीनी अहले ईमान को शहीद किया, वो तमाम खबरें और गज़ा को किस तरीके से तबाह किया, वो तमाम खबरें हम दिखाते रहे। लेकिन अभी फिर दिल दहला देने वाली खबर आ रही है कि साल नौ का जश्न, नए साल का जश्न इजरायली आतंकवादियों ने अलग अंदाज में मनाया। और वो अंदाज ये था कि इजरायली मिसाइल ने आतिशबाजी की।
ठिठुरती सर्दी में कैंपों में दम तोड़ते बच्चों पर आतिशबाजी की। मजीद 17 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, कई जख्मी हुए हैं और बारिश भी वहां पर हुई है। बारिश के बाइस पनागजीन कैंपों में जिंदगी और ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि कई लाखों की तादाद में फलस्तीनी कैंपों में पनाह लिए हुए अपनी रात और दिन गुजार रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएनओ ने इजराइल से नस्ल कुशी के खात्मा करने की अपील की। ये अपील ही कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ, बेशरम बेगैरत अरब, बेशरम बेगैरत इस्लामी मुल्क, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी तक खुलकर कोई भी इतने से नापाक टुकड़े इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के अहले ईमान के हमदर्दी और उनकी मदद के लिए अभी तक कोई भी बेशरम बेगैरत इस्लामी मुल्क भी मैदान में उतरकर मदद के लिए खुलकर नहीं आया है। इजराइल ने गज्जा के अस्पतालों पर भी हमले किया और स्कूलों पर भी हमले किया और छोटे छोटे बच्चों का खून भी इजरायली आतंकवादियों ने बहाया है और नए साल का जश्न उन्होंने फलस्तीनी बच्चों को और फलस्तीनी लोगों को मार कर मनाया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।